Yes, good morning, Suraj. Myself, Vikas Kumar, and today we are going through a grammar topic, modals. So let's continue with modals. Students, modal verb is a type of verb. Modal is a type of verb. You know, there are two type of auxiliaries, simple auxiliaries and modal auxiliaries. Simple verbs and modals. So modal verb is a type of verb that is used to indicate modality. Modal always used to indicate modality. And what is modality? Like likelihood, ability, permission, suggestion, capacity, suggestions, order, obligation, advice, etc. as are known as modality. So every time whenever we use modal, it shows all these modalities like likelihood, ability, permission, request, suggestion, order, obligation, or advice, like this. So now some common modals. Some common modals are, most common modals are can, could, should, would, may, might, must, shall, will, ought to, used to, dare, might, like this. So these are common modals. Now some common features. Let's talk about common features of the modals. Modals have the following common features. Like modals are never used alone. They never use alone. We never use modals alone. Every time they follow a principal verb. Every time modals follow a principal verbs. Like if we take an example, he can climb a tree. So here climb is a principal verb that express प्रिंसिपल वर्ब क्लाइंब इज एक्सप्रेस्ड. यहाँ प्रिंसिपल वर्ब जो है क्लाइंब उसको एक्सप्रेस किया गया है. सो एवरी टाइम वेन एवर वी यूज मोडाल्स इट ऑलवेज फॉलो अ प्रिंसिपल वर्ब. एंड वन नेक्स्ट फीचर इज modals are always followed by the base or the first form of verb. Every time modals carry first form of verb. I can play sitar, you should work hard. So every time can, play, should, work, modal always carry first form of verb. So now let's start modals. Can. Students, see, can use for ability, suggestion or request. Mainly can use for ability only. So every time whenever we see in Hindi sentence, if see देखिए, जब कोई भी सेंटेंस हम लेते हैं उसके अंदर अगर आपके सामने सेंस आ रही है सकता है, कैन, सकता है, लेकिन सकता है कैसे? एबिलिटी, नॉट पॉसिबिलिटी. एबिलिटी की सेंस हो सकता है तो वो क्या है? वो कैन मॉडल यूज होगा. लाइक if we talk about I can play basketball, I have ability to play basketball, so we will use can because this is ability. Can suggestion and request. For suggestion or request also we use can. Like can you make some coffee for me? So this is a request. You can call a taxi, so this is a suggestion. So like this, can use for sakta hai. If we talk about could is past form of can, saka. if it is saka, saka के लिए हम could यूज करते हैं. could is used for past form of can. and polite request and possibility also used as in could. like she said she could play for you as well. like this is she could play for you, वो आपके साथ लिए खेल सकी. तो सका या सकी के लिए हम कुड यूज करते हैं. कुड यू प्लीज लैंड मी दिस बुक. सो दिस इज रिक्वेस्ट. सी, वन इज रिक्वेस्ट, कैन फॉर रिक्वेस्ट, बट कुड फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट. एक तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट कर सकते हैं. जैसे प्लीज, एक बार एक प्लीज प्लीज प्लीज, तो बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट के लिए कुड यूज होता है. इट कुड बी दैट ही मिस्ड द ट्रेन. सो दिस इज पॉसिबिलिटी. इट कुड बी दैट he you missed the train. This is the possibility. Okay, so now let's go through may is also possibility. May is also used as
सकता है, जब सेंस आए सकता है, वी विल यूज मे, बट दिस इज नॉट एबिलिटी, दिस इज पॉसिबिलिटी। कैन सकता है एबिलिटी, मे सकता है पॉसिबिलिटी। सो पॉसिबिलिटी के लिए, एंड लाइक इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। देखिए जब ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, देखिए ऊपर देखेंगे बादल हैं तो कहेंगे इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। सो ये एक ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो मे यूज होगा। ओके, इसके अलावा फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी हम मे यूज करते हैं, लाइक मे आई स्पीक, दिस इज फॉर्मल रिक्वेस्ट और परमिशन, क्या मैं बोल सकता हूं। इफ वी टॉक अबाउट माइट, पास्ट फॉर्म ऑफ मे और पॉसिबिलिटी, सी मे यूज फॉर more possibility, but if the possibility is very light then we will use may, like if we see in the sky there are no clouds and if we see it might rain today, तो अगर ऊपर बादल ही नहीं है तो हम कहेंगे बारिश हो सकती है, कम पॉसिबिलिटी है तो might, और बादल हैं ज्यादा पॉसिबिलिटी है तो may। he said he might change his mind, पास्ट फॉर्म ऑफ may के रूप में, ठीक है। your purse माइट बी इन द लिविंग रूम, आपका पर्स शायद, कहता है कि जो लिविंग रूम में हो सकता है, शायद, माइट। ओके, सो दिस इज पॉसिबिलिटी। इफ यू टॉक अबाउट शुड, शुड यूज एज चाहिए, जब चाहिए की सेंस कहीं भी आती है, हिंदी में हम बोलते हैं ये करना चाहिए, वो होना चाहिए, तो शुड यूज होता है। लाइक दिस इज एडवाइस, यूज एज एडवाइस। यू शुड ईट ग्रीन वेजिटेबल, आपको हरी सब्जियां खानी चाहिए, दिस इज एडवाइस। यू शुड क्वाइट स्मोक, आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, धूम्रपान बंद कर देना चाहिए, दिस इज एडवाइस। सो शुड यूज एज एडवाइस। मस्ट, मस्ट ऑल्सो यूज इन द सेंस ऑफ चाहिए, चाहिए के लिए ही मस्ट यूज होता है। लेकिन देखो, एक तो आपको स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, एक कहें आपको अवश्य स्मोकिंग बंद कर देनी चाहिए, जब जरूर, अवश्य और हार्ड सेंस आता है, ऑब्लाइजेशन आता है, या सर्टेनली दैट समथिंग इज ट्रू, कहें कि जो मस्ट है यूज फॉर ऑब्लाइजेशन, और सर्टेनली दैट समथिंग इज ट्रू। इफ समथिंग इज ट्रू देन ऑल्सो वी विल यूज मस्ट इन द सेंस ऑफ चाहिए। यू मस्ट ओबे द लॉ, सो दिस इज ऑब्लाइजेशन, हम सब के लिए प्रतिबंध है, आपको अवश्य ही जो कानून है उसका पालन करना चाहिए। इट मस्ट बी डार्क आउटसाइड, सर्टेनली समथिंग इज ट्रू, सच्चाई है, उसके लिए हम मस्ट यूज कर सकते हैं। देन इफ वी टॉक अबाउट नेक्स्ट, ought to, ought to ऑल्सो यूज एज इन द सेंस ऑफ चाहिए, बट कहां, जब हमारे कर्तव्य की बात की जाए, आपको देश के लिए लड़ना चाहिए, आपको देश के लिए जीतना चाहिए, तो जब हमारे कर्तव्य की बात की जाती है तो हम ought to को चाहिए के सेंस में यूज करते हैं। यू ought to win for your country, और इसके अलावा ought to also use the right thing to do, जब बिल्कुल सही बात करने की बात की जाए, सही चीज करने की बात की जाए या सही एडवाइस दी जाए, तो हम ought to का यूज करते हैं। You ought to apologize, we ought to do more exercise। Next, if we talk about will, will is future action और promise and intention, जब promise किया जाए, intention हो कोई, और फ्यूचर एक्शन के लिए, जैसे टॉम विल गो देयर टुमारो, कल टॉम वहां जाएगा, तो फ्यूचर का कोई एक्शन है, फ्यूचर का कोई काम है, तो हम विल का यूज करते हैं। बट प्रॉमिस और इंटेंशन, वादा या कोई आपकी जो मनोस्थिति है, इंटेंशन आपका जो इरादा है, वादा और इरादा के लिए भी हम विल यूज करते हैं। आई विल पिक यू अप एट अराउंड 6, वादा करता है कि 6 बजे आपको पिक कर लेगा, सो इन दैट केस ऑल्सो वी विल यूज विल। If we talk about would, would is used as past form of verb, और polite request के लिए और offer के लिए हम would use करते हैं, like he told me he would come, so this is past form of verb, आएगा। okay, would you please sit down, this is polite request। एक तो please sit down, एक would you please sit down, कृपया बैठ जाएं, यानी बहुत polite request करने के लिए would यूज करते हैं। Would you like to have some tea, अगर हम कोई चीज़ किसी को ऑफर करते हैं, खाने पीने की चीज़ ऑफर करते हैं, खेलने की चीज़, would you like to play with toy, सो अगर खेलने की, खाने पीने की कोई चीज़ ऑफर करते हैं, किसी को देते हैं, तो ऑफर के लिए भी हम would यूज़ करते हैं। देन कम टू shall,
shall use with the first person to express simple future. सिंपल फ्यूचर को एक्सप्लेन करने के लिए फर्स्ट पर्सन के लिए आई और वी के साथ यूज होता है. कब? ओनली व्हेन टाइम इज इन्वॉल्व. ज्यादातर देखो आई वी के साथ भी विल यूज होता है, लेकिन अगर फ्यूचर एक्शन के साथ टाइम भी इन्वॉल्व हो, ठीक है, मैं 6 बजे जाऊंगा, टाइम इन्वॉल्व हो जाता है तो हम शैल का यूज करते हैं. वी विल लीव फॉर कोलकाता, हम कोलकाता के लिए निकलेंगे. बट अगर टाइम इन्वॉल्व कर दिया कि इस हफ्ते कोलकाता जाएंगे, तो वी शैल लीव फॉर कोलकाता दिस इवनिंग, इसी शाम हम कोलकाता के लिए निकलेंगे. सो हियर टाइम इज इन्वॉल्व, सो वी हैव टू यूज शैल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट यूज क्वेश्चन और सजेशन. कोई क्वेश्चन या कोई सजेशन दिया गया हो, फॉर आई और वी के लिए कोई क्वेश्चन पूछे या कोई सजेशन दे, लाइक लेट्स कंटिन्यू वी शैल, हमें अभी करना चाहिए कि हम कंटिन्यू रहें. ओके, सो हियर वी यूज एज सेल. नेक्स्ट इफ विल टॉक अबाउट डेयर. डेयर, यू मैनी टाइम यू सी लाइक ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे कर दिया, तो वो जो साहस दिखाता है डेयर, लाइक यूज एज एक्सप्रेस द मीनिंग टू बोल्ड इनफ टू. किसी के सामने बोल्ड होकर के अगर हम बात करते हैं, लाइक हाउ डेयर यू स्पीक टू मी, तुमने मुझसे कैसे बात की, लाइक दैट, यानी ऐसे कैसे बात की तुमने मुझसे. सो हेयर वी यूज डेयर. डेयर यूज टू एक्सप्रेस द मीनिंग टू बोल्ड इनफ टू, like this. Okay, so enough. These were the modals. So this was the modals. Thank you very much.